Hi guys, welcome to iQuanta. I have started with number system playlist and in the last video I have talked about rational numbers and irrational numbers. Today I'll be covering more classification of numbers where I'll be talking about integer, fractions, even, odd, etc. But before that, if you haven't watched my previous video, I would suggest कि आप पहले उस वीडियो को देखें तब इस वीडियो पे वापस आए. Also, along with the concept, we will be covering few questions as well. तो लास्ट तक आप वीडियो को प्लीज देखिएगा. Okay guys, let's start with the classification of rational number. So rational number are further classified as integers and fractions. Now what is fractions basically? This is something जो आप already familiar होंगे, but फिर भी एक जल्दी से इसका भी ब्रश अप कर लेते हैं कॉन्सेप्ट्स को. तो suppose there is a pizza of 8 slices. ठीक है? And suppose you ate 3 slices. तो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि आपके पास 8 slices थे, उसमें से 3 slices आपने eat की. Right? So that's why we can say in terms of a fraction 3/8, where this 3 is numerator and this 8 is denominator. Now you should know कि fractions के भी types होते हैं. The first type is proper fraction, where numerator is less than denominator. जैसे ये 3/8 proper fraction का example था. मैं example भी लिख देता हूं यहां पर. 2/3, 3/4, etc. Second is improper fraction, where numerator is greater than denominator. Example के लिए 5/4, 7/5. Right? Now, apart from proper and improper, there is one more fraction which is known as mixed fraction. मिक्स फ्रैक्शन बनता कैसे है? बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिखने का एक तरीका है. जैसे यहां पे अगर आप 7/5 को चेक करेंगे तो 7/5 को आप जब डिवाइड करते हो, so 5 into 5, this 2 is your remainder. So this 7/5 can be written as 1 2/5. लिखते कैसे हैं वो समझ लीजिए. आप कोशेंट को पहले लिखते हो, रिमाइंडर ऊपर, डिवाइजर नीचे. So in this way you write improper fraction in the form of mixed fraction. ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आपको improper को mix में कन्वर्ट करना आना चाहिए और mix को improper में. तो एक और एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ लेते हैं. सपोज 13/5 आ जाता है, तो आप अपने आप से पूछेंगे 13/5 में कोशेंट क्या होगा? कोशेंट विल बी 2, रिमाइंडर विल बी 3 and divisor is 5. So directly you can write in this way. Now suppose आपको गिवन है 7 3/4. ये मिक्स फ्रैक्शन आपको गिवन है और इसको आपको कन्वर्ट करना है. तो कैसे करें? दिस इंटू दिस प्लस दिस प्लस रिमाइंडर. सो कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर अपॉन 4. सो 31/4 आपका क्या हो जाएगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. तो आपको ये चीज आनी चाहिए, इम्प्रॉपर को मिक्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं और मिक्स को इम्प्रॉपर में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. नेक्स्ट क्लासिफिकेशन इज इंटीजर. जस्ट अ सेकेंड. इंटीजर. सो इंटीजर्स को बेस्ट वे है समझना ऑन द नंबर लाइन. सो दीज बेसिकली आर काउंटिंग नंबर्स. Counting numbers, they are negative and 0. So 0 is also an integer. लोग 0 को इंटीजर नहीं मानते हैं, बट 0 भी एक इंटीजर होता है. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. मैं यहां पे लिखवा भी देता हूं. 0 is also an integer.
So basically integer includes three things. These are counting numbers, or you can say positive integers. These are negative and zero. So this is positive integer. This one is negative integers. Zero is neither positive nor negative. ये भी लिख लीजिए. ठीक है. Now the most important thing here, everyone knows about positive and negative integers. तो कैट क्या करता है, बेसिकली एक टर्म पूछता है आपसे नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. व्हाट इज नॉन नेगेटिव इंटीजर? इट सिंपली मीन्स नेगेटिव के अलावा सब कुछ. सो इट इंक्लूड्स जीरो as well as positive integers. But I have seen many students commit a mistake that they forget to include zero because उनके दिमाग में आता है non negative मतलब positive. But remember guys, non negative means zero as well as positive. ठीक है? Okay. उसके अलावा पॉजिटिव इंटीजर्स को आप नेचुरल नंबर के नाम से भी जानते हैं, एंड नॉन नेगेटिव को होल नंबर्स के नाम से भी जानते हैं. सो बेसिकली हम बोल सकते हैं नेचुरल नंबर का मतलब हो गया सारे के सारे काउंटिंग नंबर्स, और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखा है मैंने, तो 1 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक. होल नंबर्स में 0 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो होल नंबर में 0 और आ जाता है. ठीक है. एक चीज और याद रखिएगा, इंटीजर्स को हम Z से डिनोट करते हैं या कैपिटल I से. तो अगर कहीं लिखा मिले आपको X बिलोंग्स टू Z, तो उसका मतलब है X इज अ इंटीजर, X इंटीजर होगा. ठीक है. नेचुरल नंबर को आप N से डिनोट करते हो. सो अगर लिखा है X, अच्छा इसका साइन का मतलब नहीं पता, तो ये भी आप याद रखिएगा, दिस मीन्स बिलोंग्स टू. सो X बिलोंग्स टू कैपिटल N. कैपिटल N मीन्स नेचुरल नंबर, W मीन्स होल नंबर, तो ये भी आप याद रखिएगा. कैपिटल R मीन्स रियल नंबर. सो इफ आई से X बिलोंग्स टू R, तो इट सिंपली मीन्स कि क्वेश्चन सेटर इज सेइंग कि x जो है वो रियल नंबर होगा. ठीक है. तो ये आप प्लीज याद रखना, इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का. फाइन. उसके बाद जो हम मुझे अगला क्लासिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करना है, दैट इज ऑफ इवन एंड ऑड. सो इवन नंबर सिंपली नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2. Example 0, 2, 4, 6, 8, etc. Remember guys, 0 is also an even number. काफी लोग 0 को even number consider नहीं करते हैं. 0 is also an even number. Odd number not divisible by 2. Example 1, 3, 5, 7, 9 and so on, right? So remember this thing as well. One more thing which I have to explain in terms of even and odd, which will be very helpful. So when you see even number, so obviously even number is something which is divisible by 2. So in generalized format, I can say even number will always in the form of 2x, right? Multiple of 2. And if I have to use let's say 2 consecutive even number, if I have to assume, so what will I do? I will assume first number as 2x, second number will be 2x plus 2.
In the same way, if I have to assume 3 consecutive even number, I can do it, right? Remember this thing, because consecutive even number है तो डिफरेंस कितना होगा, 2 का होगा, 2 4 6 2 का रहेगा, राइट? सिमिलरली ऑड नंबर 2 का मल्टीपल नहीं होता है, सो यू कैन से 2x + 1 ऑड नंबर की फॉर्मेट हो जाएगी, राइट? अगर आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, एक छोटी सी चीज और मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी, देखो ध्यान से, 0 से स्टार्ट होगी, तो व्हेन यू टेक x as 0 तो आपको 2 into 0 0 इज ऑल्सो एन इवन नंबर, सेटिस्फाई कर रहे हैं। सेम चीज हेयर, x स्टार्ट फ्रॉम 0, तो 1 इज योर ऑड नंबर, यू कैन सी, राइट? तो x 0 से स्टार्ट होगा, कहां तक जाएगा वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, बट जो मिनिमम वैल्यू x की रहेगी वो 0 रहेगी, राइट? तो अगर मुझे ऑड नंबर लेना है तो मैं 2x + 1 के फॉर्मेट में अज्यूम करूंगा नंबर्स को। तो कोई मुझे बोले कि आपको 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लेने हैं, तो व्हाट विल आई डू, 2x + 1 2x + 3। सिमिलरली 3 लेना है तो 2x + 1 2x + 3 2x + 5 एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट? तो वो भी मैं लिख देता हूं यहां पर। तो अगर मुझे 3 कंसेक्यूटिव नंबर लेने हैं, तो 2x + 1 2x + 3 2x + 5। In this way, I can assume 3 consecutive numbers, right? So remember this thing, guys. Odd number is of the form 2x + 1. Even number is of the form 2x. Okay. Next thing which we have to keep in mind while solving even and odd problems, उसको मैं नोट करके लिखवा देता हूं, काफी ज्यादा रिलेवेंट रहेगा, याद रखिएगा सभी लोग इस चीज को। Even plus even is always even. Take any two values, you will always find even plus even, even. Same goes for even minus even. Even minus even is also an even number. Next, odd plus odd और odd minus odd. चलो मैं पहले प्लस को समझा देता हूं। ऑड प्लस ऑड इज ऑल्सो इवन। भाई 1 + 3 ले लीजिए, क्या होता है, 4 होता है ना। ऑड प्लस ऑड इवन, ठीक है। नेक्स्ट, ऑड माइनस ऑड इज ऑल्सो इवन। थर्ड, इवन प्लस ऑड ऑलवेज ऑड, इवन माइनस ऑड is also always odd. Next part पे आते हैं। Even into even is always even. Even into odd is also even. Right? And the sixth one which you have to remember, odd into odd is also odd. Seventh, even raised to the power anything, या नेचुरल नंबर लीजिए ज्यादा बेटर रहेगा। even raised to the power natural number is even. चेक फॉर एनी पावर ऑफ 2। अगर आप कोई 2 की कोई भी पावर देखोगे तो even की पावर नेचुरल नंबर हमेशा even ही आएगा। एंड odd raised to the power natural number is odd. Right? Next is 9th, even upon even. देखो जब भी मैं आपको एक चीज बता देता हूं, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड पावर बेस, उसी में हम श्योरिटी से बता सकते हैं कि क्या आंसर आएगा। When it comes to division, we can not tell anything. उसका एक सिंपल सा रीजन मैं बता देता हूं। even upon even अगर आप चेक करोगे तो 4/2 2 आ जाता है, 6/2 3 आ जाता है। So even upon even is cannot be determined. It can be even, it can be odd, या दोनों ही ना हो, ठीक है। नेक्स्ट है इसी तरह से odd by odd. Odd by odd भी we cannot determine. 1/3 चेक कर लीजिए। So 1/3 को भी हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, तो क्या याद रखना है, पॉजिटिव एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड पावर बेस, उसका ही एक हम डेफिनेट आंसर दे सकते हैं।
इनका डेफिनेट नहीं दे सकते। तो अगर कोई क्वेश्चन में आपको ये दिखाई देता है तो सबसे पहले इनको एलिमिनेट करोगे, ठीक है। नाउ आई एम गोना सॉल्व फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट वी हैव लर्नड। ओके, सो आते हैं। अच्छा, बिफोर दैट आई वॉन्ट टू डिस्कस दिस थिंग ऑल्सो। सी गाइज, वी हैव लाइव क्लासेस जहां पे हम कॉन्सेप्ट को बिल्कुल बेसिक से सीखते हैं। Apart from live classes, we have application classes also. So what will you get once you are done with the conceptual class? उसके immediately after 1 hour आपकी एक application class होती है जहां पे जो भी आपने अभी concept में सीखा है उसका आप actual CAT level questions में apply करके देखते हो। So this is your basic और conceptual class and this is kind of an application जो हमारा iQuanta का एक X factor रहता है। Okay, let's talk about the first question. So let m and n, okay guys, before me solving this question, आपको खुद को भी ये क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। देयर आर 5 क्वेश्चंस। आप 5 क्वेश्चंस को ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में बताइएगा आपके 5 में से कितने करेक्ट होते हैं, ठीक है। चलो मैं डिस्कस करता हूँ। सो लेट m and n बी नेचुरल नंबर सच दैट m plus n is greater than m into n and m is greater than n. Fine. Given that m into n is 24, so product of these two numbers is 24 and these two numbers are natural number where the m is greater than n. So दो नंबर का प्रोडक्ट 24 आएगा, कैसे आ सकता है? 24 into 1, 12 into 2, 8 into 3, 6 into 4. Right? We will get these 4 possibility. उसके अलावा भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है, ये भी पॉसिबिलिटी है। एक सेकंड दीजिएगा, या ये भी पॉसिबिलिटी है। इसका जस्ट रिवर्स में लिखना है। ठीक है, बट इफ यू लुक एट, इसने बोला है जो m है वो n से बड़ा होना चाहिए। तो सपोज दिस इज m, दिस इज n, सो वी विल एलिमिनेट दीज केसेस। सपोज दिस इज m and this is n, right? So from this we can directly say कि ये 4 केस तो नहीं होने वाले हैं। आगे आते हैं। आफ्टर दैट इट ऑल्सो सेज कि जो m प्लस n है वो m इंटू n से बड़ा होना चाहिए। m प्लस n जो है वो m इंटू n से बड़ा होना चाहिए। दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का सम जो है दोनों के प्रोडक्ट से बड़ा होना चाहिए। तो यहां पे इनका सम देखो कितना आ रहा है, 10, यहां पर 11, यहां पे 14, यहां पे 25। तो कौन सा केस पॉसिबल होगा, आप खुद से देखकर बता सकते हो कि जो सम है वो प्रोडक्ट से बड़ा आना चाहिए। प्रोडक्ट है 24, सो ऑब्वियसली दिस केस विल बी पॉसिबल। सो m इज इक्वल टू 24, n इज इक्वल टू 1। सो दिस विल बी आवर आंसर। नेक्स्ट पर आते हैं। लेट p and q be positive integers. So we know positive means natural number satisfying p less than q, and p plus q is equal to k, right? What is the smallest possible value of k that does not determine p and q uniquely? So we will always start with the smallest value of k. So first option is 3. So p plus q is equal to 3, and p and q are natural number where p is less than q. So only this possibility 1 and 2. Then only I will get sum as 3. So यहां पे तो मुझे यूनिक वैल्यू मिल पा रही है p और q की। So this is not possible. Next, p plus q is 4. So 1 plus 3, 2 plus 2 तो हो नहीं सकता because p should be less than q. So I am getting only this possibility. So again I got a unique possibility of p and q. ये भी नहीं हो सकता। 1 plus 4, 2 plus 3. This is also possible. This is also possible because here p will be 1, q will be 4. Here p will be 2, q will be 3. So that's why we can say our C will be the right answer, because when we take p plus q as 5, हमें p और q की यूनिक वैल्यूज नहीं मिल पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 3 numbers x, y, z are selected from the set of first 7 natural numbers such that x is greater than 2y greater than 3z. How many such distinct triplets x, y, z are possible? ठीक है,
तो एक x है, एक 2y है और एक 3z है, एंड वी हैव टू चूज द वैल्यूज फ्रॉम फर्स्ट 7 नेचुरल नंबर। सो 1 से लेके 7 तक नंबर्स हैं हमारे पास, राइट? ओके, हमें एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है कि कितनी हो सकती हैं, ठीक है? सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम स्टार्टिंग विद जेड। जेड को मैं ले लेता हूं 1, सो जेड हो जाता है 3। भाई 1 से छोटा तो होगा नहीं ना, तो ये 3z हो जाता है 3, एंड 2y इज ग्रेटर देन 3z, सो दैट मीन्स 2y की मिनिमम वैल्यू 4 होगी, राइट? सो इफ 2y इज 4, y will be 2. Now, if 2y is 4, x is greater than 2y, so we can say x is 5. So this is 5. Also, x can be 6. Also, x can be 7. ठीक है? So we are getting 3 possibility as of now. जब 2y 4 है तो x 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। 7 से ज्यादा हम ले नहीं सकते। नेक्स्ट क्या हो सकता है? 2y, उसके अलावा क्या हो सकता है? 4 के बाद 5 हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज 2y एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करता है, सिखाया है आपको भी। सो 2y नेक्स्ट क्या होगा? 6। सो 2y 6, ये तो 3 ही है, तो x कितना होगा? 7 होगा। दैट मीन्स ये 7, 2/6 है तो ये 3, ये 1, राइट? सो हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज? 4 पॉसिबिलिटीज। सो दैट्स व्हाई द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। If you have any doubt related to any question or any concept, आप comment box में mention कर सकते हो। I will personally take care of your doubts, तो आप mention कीजिए, मैं खुद reply कर दूंगा। Next, 4th question. This is on even and odd. Let P, Q, R, S be distinct positive integers. ठीक है? P and Q be odd, R and S be even. Okay? Consider the statements. Fine. तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि ये जो है, ये पूरा एक्सप्रेशन इवन होगा क्या? चेक कर लेते हैं। देखिए, p माइनस आर होल स्क्वायर क्यू एस, मतलब इंटू क्यू इंटू एस, बेसिकली ये मतलब है इसका, राइट? ओके, जस्ट अ सेकेंड, एस, ठीक है? ओके, सो यहां पे देखिए एस क्या है? इवन है। इवन इनटू एनीथिंग, चाहे वो ऑड हो चाहे वो इवन हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, सिंस एस इज इवन, सो इवन इनटू एनीथिंग इज ऑलवेज इवन। तो ये तो पक्का हमेशा इवन आएगा। वी डू नॉट नीड टू चेक फॉर p माइनस आर का होल स्क्वायर, बिकॉज एस इवन है, राइट? एस इवन है। नेक्स्ट, सेम गोज फॉर दिस। अगेन यू कैन सी एस इज इवन, सिंस एस इज इवन, सो इवन इनटू एनीथिंग इज ऑलवेज इवन, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। थर्ड पे आते हैं, Q प्लस आर होल स्क्वायर, सो Q प्लस आर और P प्लस एस इज ऑड। अच्छा, ऑड देखना है तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना होगा। Q क्या है? ऑड है। R क्या है? इवन है। सो ऑड प्लस इवन, सो ऑड इवन, आपको पता है ऑड होता है, लिख देता हूं यहां पे, ऑड प्लस इवन, ऑड होता है। एंड ऑड का कोई भी पावर हो, ऑड ही आती है, ये भी बताया मैंने। एंड ऑड रेज टू द पावर एनीथिंग is odd. Anything मतलब natural number. I'm talking about natural number basically. Right? So you can see odd square will always gives us odd. Now this, what about P plus S? P है odd, S है even. So ये भी odd plus even है, odd ही होता है, लिखा है ना मैंने। So odd into odd तो हमेशा क्या आता है? odd आता है। थर्ड स्टेटमेंट में भी यही बोला गया है कि ये ऑड आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो क्वेश्चन था, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर करेक्ट? ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दैट्स व्हाई आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑन इवन एंड ऑड, 3 ऑफ द 5 पॉजिटिव इंटीजर्स आर इवन। तो 3 इवन है एंड 2 ऑफ देम आर ऑड। सो कौन से इवन है कौन से ऑड है, विच वी डू नॉट नो। Consider the following, okay, which of the above statements are correct? So let's talk about the first statement. तो we know guys कि odd plus odd क्या होता है, even plus even क्या होता है, odd plus even क्या होता है, सब पता है हमें, right? तो अगर मैं इस वाले पहले केस की बात करता हूं तो मुझे पता है 3 जो है वो even है। So even plus even करूं या even माइनस even करूं, वो तो हमेशा even ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
2 आर ऑड। अब वो 2 कौन से हो सकते हैं? देखो मान लेते हैं ये वो 2 ऑड हैं। आपको ही पता है ऑड प्लस ऑड क्या होता है? इवन होता है। इवन प्लस इवन करूं या इवन माइनस इवन करूं, वो तो इवन ही रहने वाला है, वो तो साइड में हमने रख दिया। आई एम फोकसिंग ऑन ऑड एज ऑफ नाउ। सो सपोज दीज 2 आर ऑड, सो ऑड प्लस ऑड इवन। So if this is even, so remaining 3 are already even. So even plus even या even minus even will always gives us even, right? अब आपके दिमाग में आएगा सर इसको ऑल्टरनेटली करके देखिए। ऑल्टरनेटली कैसे? भाई ये even है, Q odd है, R even है, S odd है, T even है। क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं। देखो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया, ऑड या सब्ट्रैक्ट कर दिया। ऑड माइनस ऑड भी तो इवन ही होता है ना। सो इफ आई ऐड दीज और सब्ट्रैक्ट दीज आई विल ऑलवेज गेट इवन। एंड ये इवन है, ये इवन है, ये इवन है, ये भी इवन आ गया, तब भी मेरा रिजल्ट क्या आएगा? इवन ही आएगा। सो दैट मीन्स फर्स्ट इज डेफिनेटली गोना बी करेक्ट। फर्स्ट तो हमेशा करेक्ट ही होगा। सेकंड पे आते हैं। सेकंड सेज इट्स सेकंड इज डेफिनेटली ऑड। ठीक है, चलिए ऑड होगा या नहीं देख लेते हैं। भाई 2p है, ये तो पक्का इवन होगा। 2p p पे डिपेंड नहीं करता है, 2 लग गया है तो इवन होगा ही होगा। ये भी इवन है, ये भी इवन है, राइट? सो इवन। अब व्हाट अबाउट q एंड t? तो उसने बोला इज डेफिनेटली ऑड। तो सपोज अगर मैं Q और T को ऑड ले लेता हूं, Q इज ऑड, T इज ऑड, ठीक है, ये इवन था, ये इवन था, ये इवन था। Q एंड T आर बोथ आर ऑड बिकॉज मुझे 2 नंबर ऑड लेने हैं, 3 नंबर मुझे इवन लेने हैं। लेट्स से P, R एंड S इवन थे और इवन इंटू 2 तो इवन ही रहे, राइट? और Q और T ऑड हैं, तो इन दोनों का सम क्या आएगा? इवन आएगा। इवन प्लस इवन प्लस इवन प्लस इवन विल बी इवन। बट इसने बोला डेफिनेटली ऑड। इट माइट बी पॉसिबल कि किसी केस में ऑड आ जाए, बट डेफिनेटली ऑड मतलब वो बोलता है कि हर केस में ऑड होगा, ऐसा तो नहीं है। मैंने फेल करा दिया, इस वाले केस में तो इवन आ रहा है। सो दैट्स वाई 2 कैन नॉट बी पॉसिबल। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। सो रिमेंबर दिस थिंग, डेफिनेटली ऑड मीन्स हर केस में ऑड होना चाहिए, ऐसा नहीं था। पहला केस हर केस में इवन था, दैट्स वाई द फर्स्ट वन इज करेक्ट। ओह सॉरी, सेकंड नहीं है इसका आंसर, सेकंड नहीं है, माय बैड। फर्स्ट क्योंकि करेक्ट पूछा है ना। हाँ, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर, राइट? सेकंड फेल हो गया, हमने फेल कराया कि ऑब्वियसली ये इवन हो सकता है, बट क्वेश्चन सेज इट्स गोना बी डेफिनेटली ऑड, व्हिच इज नॉट पॉसिबल। सो मुझे प्लीज बताइएगा कमेंट्स में कि कितने लोगों के 5 आउट ऑफ 5 करेक्ट हुए हैं, मेंशन करना जरूर। After that, guys, I will take 1 more minute of yours. So I have covered basic, very basic of number system. वही चीज़ हम अपने क्वांट के नॉन इंजीनियर मॉड्यूल में भी डिस्कस करते हैं विद न्यू डिफरेंट एग्जांपल्स जो आपके लिए कैट रेलेवेंट हो। तो हम बिल्कुल बेसिक से मैथ पढ़ाते हैं, जिनकी स्पेशली वीक है मैथ्स, वो हमारा नॉन इंजीनियर मॉड्यूल जो होता है वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। साथ में भी हैव अ QA कट शॉर्ट मॉड्यूल। दिस इज समथिंग एडवांस जो मैं आने वाली वीडियोज़ में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। And this is our course details which you can check out. Okay guys, thank you everyone for watching this video. If you have liked this video, please comment your feedback and share this video with your friends or peers and subscribe to our YouTube channel so that आप कोई भी नंबर सिस्टम की प्लेलिस्ट की वीडियो मिस ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।